ایک حافظ قرآن لڑکی جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو جیسے ہی اسے دفنایا گیا اس کی قبر پر ہر روز کالے کوے جمع ہونے لگے۔ وہ آتے، شور مچاتے، کائیں کائیں کرتے اور کبھی چونچ سے کبھی پنجوں سے قبر کی مٹی نوچتے۔ لوگ حیران تھے، کوئی کہتا یہ لڑکی جادوگرنی تھی، کوئی کہتا نہیں یہ تو بڑی نیک، شریف اور معصوم تھی، حافظہ تھی، مسجد میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اس کے گھر سے تو تلاوت کی آواز آتی تھی۔ لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوے صرف اسی کی ہی قبر پر کیوں آتے ہیں، باقی بھی پورا قبرستان قبروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کی قبر پر آ کر شور مچاتے ہیں اور چونچ پنجے مار کر قبر کھودتے ہیں۔ یہ سوال اس وقت اور تیز ہو گئے جب سعودیہ میں موجود اس لڑکی کا شوہر احمد کام ختم کر کے تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا دیکھا کہ اس پر ماں کی بہت ساری مس کال تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً ماں کو کال کی۔ ماں نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، بیٹا تمہاری بیوی مر گئی ہے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، دل کا دورہ پڑا، ڈاکٹر کچھ نہ کر سکے، ہم نے دفنا بھی دیا ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، فضول میں ٹکٹ اور پیسے ضائع مت کرنا۔ احمد کے ہاتھ میں موبائل گر گیا، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، کچھ بول نہ سکا، کوئی آنسو، کوئی چیخ، کچھ بھی نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے تو میری بات اپنی بیوی سے ہوئی تھی، اس نے تو کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی بیماری یا کسی گھر کے مسئلے کے لیے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ آج اس کی موت اور مجھے بلایا بھی نہیں گیا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا گیا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، پھر خاموشی سے فلائٹ بک کروائی اور اگلی صبح پاکستان پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر صحن میں اس کی ماں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ احمد رندی ہوئی آواز میں بولا، امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اتنی بڑی بات ہو گئی، میری بیوی دنیا سے چلی گئی اور آپ نے مجھے بلانا گوارا نہیں سمجھا اور مجھے دوسرے دن جا کر یہ خبر دی کہ تیری بیوی مر گئی۔ ماں نے بغیر اسے دیکھے کہا، کیا فرق پڑتا ہے احمد، تم آتے تو 2 دن لگتے، لاش خراب ہو جاتی، لوگ باتیں کرتے، ہم نے عزت سے دفنا دیا، اب صبر کرو۔ احمد نے سر جھکایا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا، میں تو شوہر تھا، مجھے خبر تک نہ دی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور سیدھا قبرستان چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈل رہا تھا، قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی احمد اس قبر کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے، کیونکہ وہاں پر درجنوں کوے صرف اسی ایک قبر پر جمع تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ مٹی نوچ رہے تھے اور کچھ سیدھے احمد کو گور رہے تھے۔ احمد آگے بڑھا لیکن کوے اڑے نہیں، جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ آج وہ آیا ہے جو 4 دن سے غائب تھا۔ قبر کی مٹی پر تازہ نشان تھے، جگہ جگہ نوچنے کے واضح آثار۔ احمد جھک کر دیکھتا تو اس کے جسم میں ایک جھرجری سی دوڑ جاتی، اسے لگتا جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو یا شاید کوئی باہر سے مدد مانگ رہا ہو۔ اتنے میں کسی نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد جلدی سے پیچھے مڑا، دیکھا ایک آواز آئی، یہ وہی قبرستان کا پرانا گورکن تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب 4 دن سے یہی حال ہے، یہی کوے اور صرف یہی قبر، میں نے ساری عمر میں ایسا منظر کبھی نہ دیکھا۔ احمد کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہ قبر کھول سکتے ہیں ہم؟ یہ بات سن کر گورکن کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، صاحب ہمیں امام صاحب سے اجازت لینی چاہیے، وہ کہیں گے تو میں فوراً قبر کو کھول دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی احمد سیدھا مسجد کی طرف چلا گیا۔ امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ احمد نے اپنی بیوی کی قبر کا سارا ماجرا امام صاحب کے سامنے رکھ دیا، ماں کی کال، دفنانے کی جلد بازی، قبر پر کوے اور یہ سوال کہ اگر وہ مر گئی تھی تو قبر خاموش کیوں نہیں۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر تسبیح ہاتھ میں لی اور آہستہ سے بولے، بیٹا کچھ قبریں زمین میں دفن نہیں ہوتی، وہ چیخ بن کر واپس آتی ہیں۔ کل فجر کے بعد ہم اس قبر کو کھولیں گے، اگر اس لڑکی پر ظلم ہوا ہے تو اللہ خود گواہی دے گا۔ احمد کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور دل میں صرف ایک سوال گونجا، ثانیہ تم واقعی مر گئی یا کسی نے تمہیں خاموشی سے مار دیا؟ تو اللہ کی نیک بندی تھی، تیری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہو سکتی
اور तूने कभी मेरे साथ कॉल पे कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। आज तू इस जमीन में दफन हो गई और ये काले कौवे पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। फजर के बाद अंधेरा अभी पूरी तरह झटा नहीं था। इमाम साहब, अहमद और वही बूढ़ा गोरकन कब्रिस्तान में मौजूद थे। चारों तरफ हल्की सी नमी और खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक अनजानी कपकपी छुपी हुई थी, जैसे खुद मट्टी भी जानती हो कि आज उससे एक राज छीना जाएगा। कब्र खोदने के लिए पहला फावड़ा लगा तो कौवे दरख्तों पर आकर बैठ गए, जैसे देखना चाहते हों आज इंसान क्या तमाशा करने आए हैं। गोरकन ने आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटाना शुरू की और अहमद की सांसें तेज होती गईं। ये फावड़ा गोया उसके दिल पर लग रहा था। इमाम साहब खामोश थे, दुआओं में मसरूफ, और कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। यहाँ तक कि जब कफन के सफेद कपड़े का पहला कोना जाहिर हुआ, गोरकन की सांस रुक गई। उसने कहा, साहब, लाश तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। कब्र की मट्टी जब मुकम्मल हटा दी गई और अहमद कांपते हाथों से सानिया के चेहरे को गौर से देखने लगा, तो उसके अंदर जैसे एक भूचाल आ गया हो। उसने चीख मारकर इमाम साहब को पुकारा, मौलवी साहब, आंखें, ये पलकें, ये तो हिल रही हैं। सबकी नजर उस बेजान समझी जाने वाली लड़की के चेहरे पर जमी थी और वाकई उसकी पलकें हल्की हल्की झपक रही थी। सांस बहुत मदम लेकिन थी। सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई अंदर गहरी नींद में हो या जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती सुलाया हो। इमाम साहब के हाथ से तस्बीह फिर गिर गई और गोरकन एकदम पीछे हट गया। अहमद ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये जिंदा है, मेरी बीवी जिंदा है। वो हाथों से उसके चेहरे को सहलाता रहा, उसकी नब्ज तलाश करता रहा और इमाम साहब के हुक्म पर सब कुछ छोड़कर उसे फौरन करीबी अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस की आवाज कब्रिस्तान की खामोशी चीरती चली गई। अहमद रास्ते में सानिया का हाथ पकड़े बैठा था। अहमद की आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। शादी के वो दिन, सानिया की खामोशी, उसकी मुस्कुराहट और वो कुरान सुनाने की आवाज, और फिर वो माँ की सर्द बातें। जादूगरनी थी, कब्रिस्तान जाती थी, अच्छा हुआ मर गई। दिल में 100 सवाल, आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ दुआएं। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर फौरन इमरजेंसी में ले गए। 5 मिनट बाद एक नर्स बाहर निकली, चेहरे पर हैरत और परेशानी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये केस नॉर्मल नहीं है। ये लड़की पिछले 24 घंटों से मुकम्मल बेहोश है, लेकिन हैरत की बात ये है, ये कीटाटोनिया जैसी हालत में थी। जिस्म जिंदा, दिमाग खामोश, और किसी ने धड़कन चेक भी ना की। अहमद ने फौरन कहा, इसे तो मर चुकी समझा गया था, दफना भी दिया गया था। नर्स एक लम्हे साकत रह गई, फिर फौरन अंदर चली गई। डॉक्टर ने बाहर आकर संजीदा लहजे में कहा, ये लड़की दफनाई नहीं गई थी, ये जिंदा दफनाई गई थी और ये अब तक सांस ले रही थी। ये सिर्फ किसी शदीद जिस्मानी या नफ्सियाती शाक की वजह से इस हालत में चली गई जो मौत समझी गई। वो एक खामोशी थी, मगर जिंदगी अभी बाकी है। अहमद कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सानिया के आंसू तैरने लगे, जिन्हें वो देख न सका, वो सांसें जिन्हें वो सुन न सका, वो चीखें जो कभी निकली ही नहीं। कब्र के अंदर उसे सिर्फ दफनाया नहीं गया था, उसे भुला दिया गया था। और शायद उसकी माँ की जल्दबाजी, उसकी अपनी लापरवाही और सानिया की वो पुरस्कार बीमारी, सब मिलकर उसे जिंदा कब्र में ले गए। सुबह फजर के वक्त जब अहमद अस्पताल से निकला, दिल में एक तूफान लिए वो सीधा घर की तरफ रवाना हुआ। दरवाजा खोलते ही अंदर से जोर जोर की हंसी सुनाई दी। सहन में उसकी माँ और दोनों बहनें बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे किसी खुशी का जश्न मनाया जा रहा हो। अहमद दरवाजे पर ही रुक गया। माँ बोली, देखा, पहुंच गई ना अपने अंजाम को। बड़ी आई थी हमारे बेटे की कमाई खाने वाली, हमने घर में रखी तो सर पर चढ़ने लगी थी। आखिरकार उसकी चालाकियां खत्म हुई। बहनों ने कहका लगाया, क्या नेक बनने का नाटक करती थी। हाफिजे कुरान, कुरान की आवाज, सब ड्रामा था। अल्लाह ने ले ही लिया आखिर उसे। अहमद की आंखें खुली की खुली रह गई। वो साकत खड़ा था, जैसे जमीन उसके कदमों से खिसक गई हो। अचानक उसे वो लम्हा याद आया जब वो पहली बार माँ से बोला था, अम्मी, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। वो हाफिजा है, बापर्दा है, दीनदार है। लेकिन माँ का चेहरा उस वक्त भी सख्त हो गया था। उसने साफ इनकार किया। उसे ले आया तो मैं मर जाऊंगी। हमारे खानदान की लड़कियों जैसी नहीं है वो, ना बोलती है ना घुलती मिलती है।
अहमद को लगा था कि शायद माँ वक्त के साथ मान जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था माँ ने उसी दिन दिल में जहर बो दिया और अब वो जहर उसकी बीवी के जिस्म से निकलकर उसी कब्र में दफन किया जा रहा था जहाँ जिंदगी अभी बाकी थी। अहमद की आंखों के सामने वो सारी बातें गूंजने लगी। सानिया का बार बार बेहोश होना, माँ का तंजिया लहजा, बहनों की नफरत भरी नजरें और सबसे बढ़कर उस दिन का वो खामोश चेहरा जब सानिया ने कहा था, मुझे लगता है अम्मी मुझसे नफरत करती हैं, मैं कुछ करती नहीं, फिर भी हर बार इल्जाम मेरे सर। अहमद पीछे हटा, आंखों से आंसू पूंछे और दिल में सिर्फ एक बात ठान ली, अब मैं सिर्फ शौहर नहीं, इंसाफ के लिए लड़ने वाला इंसान बनूंगा। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी, सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई देती थी। जब सानिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली, अहमद उसके सामने बैठा हुआ था, आंखों में शर्मिंदगी, चेहरे पर थकन, लेकिन इस बार उसने जैसे फैसला किया हो वो खामोश नहीं रहेगा। वो आगे बढ़ा, आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा और सिर्फ इतना बोला, सानिया मुझे माफ कर दो। मगर सानिया ने पलकें हिलाई और उसकी आंखों से वो आंसू निकले जिनमें सिर्फ नमक नहीं, अंदर दबी हुई आंधियां थीं। उसने होंठ हिलाए और फिर एक ऐसी आवाज निकली जो किसी के वहमो गमान में भी ना थी। उसने लरजती जुबान से कहा, अहमद, जब मैं तुमसे कहती थी कि मेरे सर में दर्द है, तब असल में तुम्हारी बहन ने मेरे सर पर झाड़ू का डंडा मारा था। जब मैं कहती थी तबीयत खराब है, तब मैं हामला थी और तुम्हारी माँ ने पेट पर पैर मारा था और कहती थी लड़की है, पर मैंने किसी को नहीं बताया अहमद, मेरे माँ बाप गरीब थे और वो तो जीते जी मर जाते। इस वजह से अहमद, हमारी वो बच्ची मेरे पेट में ही मर गई। अहमद हैरान हुआ, मर गई और किसी को खबर ना हुई? मैं तुमसे बात करने बैठती तो तुम्हारी बहनें मेरे साथ चिपक कर बैठ जाती, तुम्हारी माँ इतना जोर से खांसती कि मैं खामोश हो जाऊं। क्या तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगा? तुम्हें कभी ख्याल आया कि मैं तुमसे बात करना क्यों छोड़ गई? मैं खामोश क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारे घर में मेरी जुबान तुम्हारे कानों तक कभी पहुंचने ही न दी गई। तुम सोचते रहे मैं बदल गई हूँ, लेकिन मैं नहीं बदली अहमद, मैं तो बस मर गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं सांस के ताने सहती रही। कभी मुझे सांस लेते देखकर कहती, कितनी बेशर्म है ये लड़की, को तो तमीज ही नहीं, ये सांस भी बेहुदा किस्म से लेती है। कभी बहनें मेरे खाने में नमक ज्यादा डालकर फिर सबके सामने मुझे शर्मिंदा करती। मैंने कई बार सोचा खुद को खत्म कर लूं, फिर हर बार कुरान थाम लेती, वही कुरान जिसे तुम्हारे घर वालों ने मजाक बनाया, वही कुरान जो मैंने रोज पढ़ा, वही मेरी ढाल था। लेकिन ढाल भी आखिर कब तक बचाती अहमद? मेरी हालत इसलिए नहीं बिगड़ी कि मैं बीमार थी, मेरी हालत इसलिए बिगड़ी तुम खामोश थे। मैंने जो कुछ सहा वो किसी काफिर के साथ भी ना हो। मुझे पागल नहीं तुम्हारे घर ने बेजान किया, मुझे जादूगरनी नहीं तुम्हारे खानदान ने कब्र नशीन बनाया, और तुम बस देखते रहे। जब मैं रोई तुम्हारी माँ ने कहा ड्रामा है, जब मैं खामोश हुई तुम्हारी बहन ने कहा शायद जुबान बंद करा दी किसी ने, और जब मैं मरी तो तुम सब ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अहमद, अब मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे सामने इसलिए बैठी हूँ तुम्हारा जमीर जागे। तुम सिर्फ माफी मांगकर नहीं बच सकते। मैंने बेटी खोई है, मैंने अपना दिमाग खोया, मेरी इज्जत, मेरी इबादत सब तुम्हारे जहरीले घर में दफन हो गए, और सबसे ज्यादा मैंने अपना आप खो दिया। और तुमने सिर्फ खामोशी इख्तियार की। अब अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो बताओ, क्या तुम इन चीखों का जवाब दोगे या फिर एक बार फिर मुझे खामोश करवा दोगे? जब अहमद की गाड़ी घर के बड़े दरवाजे पर आकर रुकी तो सहन में बैठी उसकी माँ और दो बहनें जैसे बर्फ के मुजस्समे बन गईं। दरवाजे खुलते ही सानिया को जिंदा देखकर उनके चेहरे सफेद पड़ गए। बड़ी बहन की जुबान से बेख्तियार निकला, ये तो मर चुकी थी। छोटी बहन ने मुंह पर हाथ रख लिया और माँ के लबों से गिलास गिर गया जो उसके हाथ में कांपते हुए पकड़ा था। अहमद ने उन सब की तरफ देखा और उसके चेहरे पर किसी किस्म की हैरत नहीं थी, बस एक खामोश तूफान था। वो थोड़े फासले पर खड़ा बोला, अब कुछ कहोगी माँ, ये कैसे जिंदा हुई? माँ फौरन संभल कर आगे बढ़ी और गिड़गिड़ाती हुई बोली, बेटा ये सब तो डॉक्टरों की गलती थी, हमें तो बताया गया था कि वो मर गई, हमने तो सिर्फ जो रिपोर्ट आई उसी पर अमल किया। बहनें भी फौरन बोलने लगी, भाई हमारा कोई कसूर नहीं, हमें तो लग रहा था कि जैसे सानिया की रूह वापस आ गई हो। अहमद ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ ना बोला, सिर्फ एक बार गहरी सांस ली और सीधा माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया।
सब पीछे पीछे दौड़ी, जैसे किसी बड़े राज के टूटने का डर हो। अहमद ने सीधा अलमारी खोली। उसका हाथ कांप रहा था। वो नीचे वाले खाने में झुका और पुरानी फाइलें निकालने लगा। चंद लम्हों के बाद उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा आ गया, जिसे उसने आहिस्तगी से खोला। अंदर से एक जाली डेथ सर्टिफिकेट निकला, जिस पर डॉक्टर के जाली दस्तखत और नीचे एक कैश रसीद चिपकी थी। रकम 5 लाख रुपए, साथ एक नोट पर हाथ से लिखा था, सानिया को दफनाने की फीस रिपोर्ट बनवा दी गई है, जनाजा कल कर लेंगे। अहमद ने सबके सामने वो कागज लहराया और कहा, ये किसने दिए? ये झूठे कागजात किसने बनवाए? डॉक्टर को पैसे किसने दिए? सब खामोश, जैसे किसी ने जुबानों पर सील लगा दी हो। माँ ने हिकलाते हुए कहा, बेटा वो मैं। अहमद आगे बढ़ा, माँ के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा ख्याल था कि अल्लाह नहीं देखेगा? तुमने एक जिंदा हाफिजा को मट्टी में दफनाया और आज झूठ बोलकर खुद को बचा रही हो। ये रकम, ये सर्टिफिकेट, ये सब कुछ तुम्हारी नीयत को साबित करता है। और आज तुम्हारे अपने बेटे ने तुम्हें बेनकाब कर दिया। सहन में एक सुनाटा छा गया। बहनें दीवार की तरफ देखने लगी और माँ का जिस्म थर थर कांपने लगा। लेकिन अहमद ने अब पीछे नहीं हटना था। वो बोला, सानिया तो वापस आ गई, लेकिन अब इस घर की मुनाफिकत, ये जहर, ये जुल्म मैं जिंदा दफन नहीं होने दूंगा। अब इंसाफ होगा, खवा तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। जैसे ही अहमद ने सबूत सबके सामने मारे, घर का सुनाटा चीख बन गया। बहनें जो कल तक सानिया को बेऔलाद, बेकार और बोझ कहती थी, अब कोने में खड़ी चुपचाप सहम गई थी। मगर उनके गुरूर को जैसे अपने बच्चों पर बड़ा मान था। बड़ी बहन आगे बढ़ी और बोली, भाई हमसे गलती हो गई, लेकिन हम माँ हैं, हमें माफ कर दो, हमारे बच्चे छोटे हैं। छोटी बहन ने भी तेजी से कहा, तुम्हारी बीवी को अब सब कुछ वापस तो मिल ही गया है ना, बस खत्म करो ये सब। मगर जो बात सानिया अगले ही लम्हे बोली, उसकी बात जैसे हथौड़े की तरह उस गरूर पर गिरी। उसने कहा, तुम लोग माएं तो तब साबित होती ना जब खुद किसी की बेटी की कोख पर वार ना करती। तुमने मुझे औलाद ना होने पर ताने दिए। जब मैं हामला हुई, तुम्हारी माँ ने मेरे पेट पर पैर मारा और अब तुम अपने बच्चों को ढाल बनाकर माफी मांगती हो। सहन की दीवारों से जैसे हवा रुक गई। अहमद की आंखों में तूफान था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम सब अपने अपने शौहरों के घरों को वापस जाओ। ये घर तुम्हारी ससुराल की पनाह का नहीं, ये सानिया का है और अब यहाँ उसी का हुक्म चलेगा। बड़ी बहन चीखी, तुम हमें निकाल रहे हो, बच्चों समेत? अहमद ने निगाहें झुकाकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हें खुद निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को तुम सिखा रही हो चुप रहने वाली औरत को कुचला जाए, कल वही अपने घरों में जुल्म को जायज समझेंगे। फिर वो माँ की तरफ पलटा, जो जमीन पर बैठ चुकी थी, चेहरे पर शिकस्त, जुबान बंद। उसने आंखों में आंसू भरे और आहिस्ता से बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने जो किया मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मैं जल गई थी अंदर से, मुझे लगा था सानिया मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। अहमद उसके करीब बैठा और बोला, माँ जी, तुमने सिर्फ बीवी से नहीं, एक हाफिज़े कुरान से दुश्मनी की, और जो कुरान से दुश्मनी करता है वो अपने ही घर में सजा पाता है। सानिया ने आगे बढ़कर माँ को देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई नफरत ना थी, सिर्फ एक जुमला, अगर मेरी कब्र पर परिंदे चीख सकते हैं तो तुम क्यों ना सुन सकी माँ। माँ और बहनों ने अपना आप बचाने के लिए बेटे और बहू से माफी मांग ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो खेल रच रही थी वो इतना शर्मनाक था, सोचकर भी रूह कांप जाए। कोई अपनी बहू से इतनी भी नफरत कैसे कर सकता है। सानिया अभी उन सब बातों से निमट ही रही थी। एक शाम वो अपने कमरे में कुरान की तिलावत मुकम्मल कर रही थी। अहमद सख्त गुस्से में दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मोबाइल पकड़े। उसके चेहरे पर एक गहरी चोट का साया था, जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया हो जो आंखें जलाने वाला हो। सानिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अहमद ने खामोशी से मोबाइल आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर एक झूठी और गंदी वीडियो चल रही थी, जिसमें सानिया किसी लड़के से बात करती दिखाई जा रही थी। मंजर कटे पिटे, आवाज एडिट, अंदाज ऐसा जैसे किरदार की मौत लिखी गई हो। सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है अहमद, ये मैं नहीं हूँ। अहमद ने वीडियो देखी, मोबाइल नीचे फेंक दिया और धीरे से बोला, मुझे पता है, लेकिन ये सब किसने किया ये जानना जरूरी है। उस रात वो अपनी पुरानी लैपटॉप निकाल लाया, देर तक खोज लगाता रहा। तब उसने एक फोल्डर खोला जिसका नाम था प्लान बी।
फोल्डर में एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सानिया की पुरानी तस्वीरें, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग और वीडियो का रॉन्ग कट मौजूद था। अहमद ने ट्रेस करवाया तो दिल कांप उठा। वो वीडियो झूठी थी और बहन के कमरे के वाईफाई से अपलोड की गई थी। अहमद ने फौरन सबको सहन में जमा किया, लैपटॉप बीच में रखा और कहा, अब कोई जुबान चलेगी या मैं खुद बोलूं? बड़ी बहन झट से बोली, हमने कुछ नहीं किया। अहमद ने सवालिया नजर छोटी बहन पर डाली। वो हकलाई, पसीने में शराबूर हुई और आखिर फूट पड़ी। अम्मी ने कहा था, अगर वो जिंदा वापस आ जाए तो बदनाम कर देना, ताकि लोग उसे जादूगरनी ही समझे। अहमद की आंखों में खंजर चलने लगे। उसने माँ को देखा जो कुरान हाथ में पकड़े नमाज पढ़ रही थी। वो निकली तो सानिया उसके सामने जा खड़ी हुई और कहा, माँ जी, कब तक कुरान की आड़ में जहर छुपाओगी? कब तक रब के नाम पर जुल्म करोगी? तुम्हें मेरी इबादत से नफरत थी और आज मेरी इज्जत को भी कत्ल करने चली थी। अहमद की आवाज कांप गई। अम्मी, अगर कुछ भी हो वो तुम्हारी वजह से होगा, लेकिन अगर बेटा जालिम ना बनना चाहे तो मुजरिम माँ को रोकना होगा। वो घुटनों के बल बैठा, हाथ जोड़कर बोला, अम्मी, अगर अब भी दिल में रब का डर है तो सच बोल दो, या मैं खुद सबूत लेकर अदालत जाऊं। माँ का रंग उड़ गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी। उसकी आंखें चकराने लगी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके हाथ से कुरान छूटा और सानिया झुककर उसे उठाने की बजाय बस इतना बोली, कुरान कभी जमीन पर नहीं गिरता, लेकिन जिनके दिल में कुरान ना हो उनका अंजाम जरूर गिर जाता है। अहमद की माँ को जब ये महसूस हुआ मेरा हर प्लान पकड़ा जा रहा है, तो जहनी तौर पर टेंशन का झटका लगा। माँ जमीन पर गिरी तो सब उसे उठाने दौड़े। अहमद पीछे हट गया। उसने सानिया की तरफ देखा, जैसे वो अब कुछ भी ना कहना चाहता हो, क्योंकि रब खुद अब बोलने लगा था। अगली सुबह माँ की दाईं टांग ने हरकत बंद कर दी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि फालज के आसार हैं, शायद दिमागी शौक की वजह से। सानिया ने ना कोई बद्दुआ दी थी ना बदला मांगा था, सिर्फ चुपचाप कुरान खोला और पढ़ती रही, जैसे कुरान अब खुद अपने जालिम दुश्मन को सजा दे रहा हो। माँ को दुआओं से फर्क न पड़ा और जब उसने उठकर चलने की कोशिश की तो गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, ये अंदर से गिरती जा रही है, इसे सिर्फ रब बचा सकता है। मगर रब तो उसी दिन से इंसाफ शुरू कर चुका था जब उसकी हाफिजा बंदी को उसने मट्टी में दफनाया था। उसी दिन बड़ी बेटी का शौहर तैश में घर आया। उसने तलाकनामा हाथ में दिया और बोला, मुझे पता चल गया है तुम्हारे घर की असल हकीकत। तुमने अपनी भाभी को जादूगरनी कहकर दफनाया, तुम्हारी माँ ने रिपोर्ट बनवाई और तुमने वीडियो प्लान की। मेरे बच्चे ऐसे खानदान में नहीं पल सकते। बड़ी बेटी के होश उड़ गए। वो रोती पीछे भागती, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और साथ ही उसके रिश्ते की जिंदगी भी। अहमद खामोशी से ये सब देखता रहा। उसकी आंखें कह रही थी, यही वो अंजाम है जिसे मकाफात कहते हैं। अभी शाम भी ना हुई थी कि दूसरी बेटी के ससुराल से फोन आया, शौहर दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में दाखिल है। आखिरी खत में सिर्फ एक जुमला था, मेरी माँ कहा करती थी, बहू पर शक न करो, वो भी किसी की बेटी होती है, लेकिन तुम्हारी माँ के जहर ने मुझे मार दिया। वो चीख मार कर गिर पड़ी और जब उठी तो उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। माँ बिस्तर पर पड़ी, सब देखती रही, मगर जुबान बंद थी। वो बोलना चाहती थी मगर लफ्जों में जान न थी। हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ ने फरमाबरदारी से इनकार कर दिया। शायद यही वो लम्हा था जहाँ जालिमों के जिस्म नहीं, रूहें मफलूज होती हैं। अब सिर्फ एक किरदार बचा था, सानिया, जो अपनी तिलावत जारी रखे हुए थी, एक छोटी सी दुआ के साथ, ऐ अल्लाह, जो मेरे साथ हुआ वो तेरे सामने है, अब फैसला तेरा है, इंतकाम मेरा नहीं। माँ चारपाई पर पड़ी थी, जुबान जैसे किसी और की हो गई हो, ना अल्फाज निकलते ना दुआएं, बस आंखों में पछतावे की नमी और दिल में अंजाम का दर्द। अहमद रोज सुबह उसे दुआ देता, खामोशी से, बगैर कुछ कहे, लेकिन उस खामोशी में वो सदाएं थीं जो माँ ने बरसों बहू पर बरसाई, मगर अब वो बोलने के काबिल नहीं थी, लिहाजा उसने सिर्फ हाथ जोड़ने सीख लिए थे। उस रोज जब अहमद ऑफिस से लौटा तो माँ ने कांपते हाथों से उसे रोका और फूट फूट कर इशारों में रोने लगी। आंखों से ही कह रही थी, मेरी बेटियों को कुछ न कहना, वो बच्चे लेकर कहाँ जाएंगी। अल्लाह का वास्ता है बेटा, तू बाप भी है, भाई भी है। अहमद चुपचाप बैठा। उसने बहनों को पास बुलाया। दोनों बहनें सहमी हुई, अपने बच्चों के साए में थी। अहमद ने नरमी से कहा, तुम्हें पता है बहनों, जब तुम सब ने मिलकर मेरी बीवी को दफनाया,
उस दिन मैंने एक शौहर की नहीं बल्कि एक भाई की मौत भी देखी थी, क्योंकि बहनें जो अपने माँ बाप के घर आकर रोज रोज झगड़ा करती हैं, गुरूर करती हैं, बहू पर राज करती हैं, वो क्यों भूल जाती हैं कि कल अगर माँ बाप ना रहे तो वही भाभी उनका सहारा बनेगी। बड़ी बहन ने रोकर कहा, भाई हमें माफ कर दे, हम सब अंधी थी और अम्मा के इशारों पर चलती रही। अहमद की आंखों में दर्द उतर आया। उसने कहा, माँ तू अब खामोश है लेकिन अभी जिंदा है। उनके भाई ने कहा, बहनों अभी भी वक्त है, जो कुछ तुम अपने बच्चों को सिखाओगी बड़े होकर वो भी यही करेंगे। तुम्हारी बेटियां भी किसी की बहू बनकर यही अजाब झेलेंगी। फिर तुम रोना, लेकिन सुनने वाला कोई ना होगा। दोनों बहनें नीचे जमीन पर बैठ गईं, बच्चों को गोद में लेकर रोने लगी और पहली बार वो गुरूर की पगड़ियां जो हमेशा सर पर रही थीं अब उनके पैरों तले थीं। माँ के हाथ अब भी कांप रहे थे। वो अहमद को देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, तू ही बता मेरा अंजाम क्या होगा। अहमद ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, जो औरत अपनी बहू को कभी बेटी नहीं मानती वो माँ के नाम की भी हकदार नहीं। तेरे लिए यही सजा काफी है। अब तेरी बेटियों की जिम्मेदारी भी उसी पर है जिसे तूने कभी इंसान नहीं समझा। उस सुबह सब खामोश थे। माँ चारपाई पर खामोश, बहनें सहम कर बच्चों को संभाले दीवारों से नजरें चुरा रही थी। अहमद ने नाश्ते के बाद दोनों बहनों को पास बुलाया, उन्हें सामने बिठाकर देर तक खामोश रहा, जैसे जुबान भी सोच रही हो सच को कैसे बोला जाए। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को मैं आज कुछ आखिरी बातें कहने आया हूँ। याद है जब अम्मा अपने हाथ पांव पर सलामत थी, जब वो रोज तुम्हारे कमरे में आती थी, तुम्हारे हाथ चूमती थी और कहती थी, मेरी शहजादियां ये घर तुम्हारा है। उस वक्त तुम लोगों ने क्या किया? मेरी बीवी को नौकरानी बना दिया, उस पर जादूगरनी का इल्जाम लगाया, कब्र में दफन किया, वीडियो बनाई, मेरे बच्चे का कत्ल किया और फिर तुम्हें लगा ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आज तुम्हारे बच्चे मेरी गोद में होते अगर तुमने अपनी भाभी को बहन समझा होता। दोनों बहनें रोने लगी। भाई हमसे गलती हो गई, हम माँ के पीछे थी। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, बस अब तुम्हारे आंसू उस सानिया के खून के बराबर नहीं हो सकते जो तुम्हारी वजह से कब्र में गई थी। अब तुम्हें माफी सिर्फ अपने रब से नहीं अपने शौहरों से भी मांगनी होगी, जिन्हें तुमने झूठ सुनाया, झूठी कहानी सुनाई और अपने रिश्ते को बदनाम किया। फिर वो उठा और मोबाइल निकाला, दोनों बहनों के शौहरों को फोन किया। थोड़ी ही देर में दोनों आ गए और दरवाजे पर देखकर चौंक गए। उनकी बीवियां अहमद के कदमों में बैठी रोती कांपती और पहली बार माँ की जुबान के बगैर अपनी सफाई दे रही थी। अहमद ने दोनों शौहरों से कहा, ये तुम्हारी बीवियां हैं, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। अगर दिल में जगह बची हो तो माफ कर दो, वरना सजा दो, जैसे मेरी बीवी ने सही। शायद तुम्हारी बीवियां सह न सकें। एक शौहर आगे बढ़ा, उसने हाथ पकड़ा और कहा, अगर ये सच में शर्मिंदा है तो मैं मौका दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। दूसरा शौहर कुछ लम्हे रुका, फिर उसने अपनी बीवी के सर पर हाथ रखा और बोला, वापसी का दरवाजा सिर्फ नीयत से खुलता है। अब नीयत तुम्हारी, वक्त हमारा। अहमद ने दोनों को देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, जहाँ से इज्जत छीनने नहीं देने जाती हैं बहुएं। अब वापस जाओ और वही औरत बनो जो कभी मेरी बीवी बनना चाहती थी। बहनें बच्चों को उठाकर चलने लगी। अहमद की आंखों से खामोश आंसू निकले, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि आज बहनों ने नहीं, एक भाई ने नरम दिल के साथ सख्त फैसला किया था। उस दिन के बाद बहनें जब अपने घरों को वापस लौट गईं और सास अपनी ही चारपाई की कैदी बन गई, पूरा घर जैसे एक अधूरा किला बन चुका था। लेकिन सानिया ने उस किले को कुरान की रोशनी से भर दिया। सास का जिस्म अब सूखती जा रही थी, वो जुबान बंद हो चुकी थी, हाथ कप कपाकर बेजान हो चुके थे।